Okay. So I want to discuss a very simple problem of how an unstable particle can decay into two particles, and how can we find, let's suppose, the energy of one of the daughter nuclei or daughter particles from the parent and the other particle itself. Okay, so this is an important sort of a standard problem, and ये प्रॉब्लम आप समझ जाओगे कैसे करना है, तो फिर सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, टू बॉडी decay of an unstable particle. Two body decay of an unstable particle. कोई भी अनस्टेबल पार्टिकल है. लेट्स सपोज मेरे पास आई हैव अ पार्टिकल ए. I have a particle A. It's a radioactive particle or some kind of a subatomic particle that spontaneously undergoes some kind of a decay into two further daughter particles, and those daughter particles are emitted in some random directions, of course based on the conservation of various quantities. So daughter particles are, let's suppose, one is particle number B and the other is particle number C. एक आपका पार्टिकल B है, दूसरा पार्टिकल C है. Okay, this is particle B and particle C. So an unstable particle A undergoes decay into two further particles B and C. So this is a general reaction. Now kinematics में अलग अलग reactions भी हो सकते हैं. A plus B is equal to C plus D भी हो सकता है. Various other sort of these things are there. In fact आप अगर देखोगे तो कि नेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. You know, beta decay से related problems, neutrino से related problems. There are many questions that come in examinations, competitive examinations, जहाँ which derives from this kind of a standard approach जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. So आपके पास क्या है? Some kind of a particle A that undergoes decay into B plus C. Let's suppose you talk about the masses of these particles. Okay. So if we talk about the masses of this particle, let's suppose the mass of this particle is Ma, the mass of this particle is Mb, the mass of this particle is Mc. Okay, and we talk about the energy of this particle. Energy मतलब relativistic energy. Let's suppose कि the entire decay happens in the rest frame of the parent particle. Okay, let's suppose we observe the decay in the rest frame of the parent particle. We observe the decay in the rest frame of parent particle, मतलब A. तो A में देख रहे हैं तो तब एनर्जी A का जो हो जाएगा रेस्ट एनर्जी हो जाएगा ये, और फिर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में B which may be moving, will have an energy EB, and C which may also be moving may have energy C. ठीक है. The particle of mass Ma decays into two particles of mass Mb and Mc respectively with energies Eb and Ec respectively. ठीक है. ऐसा सिचुएशन में अगर हम फोर वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, फोर वेक्टर विच वन, द मोमेंटम एनर्जी फोर वेक्टर, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ सबसे पहले तो पी ए. ठीक है. पी ए पहले रेस्ट में था, तो अगर पी ए रेस्ट में था इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? What will be the first component, or rather the zeroth component of PA, the four vector momentum of particle A? EA by C. EA upon C. What about the second, third and fourth components? 0, 0, 0. 0. Yes.
0 0 बिकॉज इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है. अब पी बी का हम देख लेते हैं. पी बी का जो टाइम component है that is EB upon C. However, we do not know that if it is at rest or not. B can be moving at some velocities. So if B can be moving at some velocities, हम इसको लिख देते हैं PB1, PB2, PB3. Okay. And PC could also be moving with certain velocities. So we write this as EC upon C, PC1, PC2, and PC3. Alright. Now what can we apply, what known conservation law can we apply here? क्योंकि कोई ना कोई कंजर्वेशन लॉ तो अप्लाई करना ही पड़ेगा टू मेक श्योर दैट वी arrive at some kind of a conclusion about certain unknown quantities. So we can apply the conservation of 4 vector momentum. ठीक है. मोमेंटम कंजर्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं. We can apply the conservation of 4 momentum वेक्टर. तो 4 मोमेंटम वेक्टर अगर हम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे इट सिंपली मीन्स दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस पी सी. पी ए द मोमेंटम ऑफ द particles before the decay पी ए and the moment of the particles after the decay Pb plus Pc is equal. ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अननोन क्या है. मोस्टली क्या होता है, जो स्टार्टिंग का पेरेंट न्यूक्लियाई होता है या पेरेंट पार्टिकल होता है उसके पैरामीटर्स नोन होते हैं. बहुत बार क्या होता है अननोन जो होता है, लेट्स सपोज वन ऑफ द डॉटर पार्टिकल्स. कभी कभी क्या होता है वन ऑफ द डॉटर पार्टिकल्स इज अ न्यूट्रिनो, लेट्स सपोज. तो न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास होता है 0 मान के चलते हैं. तो अदर वाले पार्टिकल का हमें चाहिए, तो हो सकता है लेट्स सपोज हमें पी चाहिए, पी सी चाहिए. ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज अननोन. ठीक है. हम कैलकुलेशंस किसी भी तरह से कर सकते हैं. यहाँ पे तो सभी अननोन वेरिएबल से डिनोट किया, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस में मोस्टली जो वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाइज का जो क्वांटिटीज़ है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अननोन. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम इसको लिख सकते हैं और पी सी म्यू इज इक्वल टू पी ए म्यू माइनस पी बी म्यू. ठीक है. नाउ मैंने लास्ट क्लास में आपको अप्रोच क्या बताया था कि एक बार मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. स्केलर प्रोडक्ट लेंगे. इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं बिकॉज दिस लेफ्ट हैंड साइड इज वन क्वांटिटी, द राइट हैंड साइड इज अनदर क्वांटिटी, दे आर बोथ इक्वल. तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है विद इटसेल्फ इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, जिसको मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सारे बने हुए हैं. तो पी सी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बट इस स्क्वायर को आपको समझना पड़ेगा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बेसिकली इनर प्रोडक्ट ओनली. एंड पी ए म्यू माइनस पी बी म्यू होल स्क्वायर. ठीक है. अब आपको मालूम है कि पी म्यू या फिर कोई भी पार्टिकल का जो इनर प्रोडक्ट है कितना होता है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर. माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर. तो पी सी का कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये सारे रेस्ट मासेस है. लेट्स सपोज इन द इन द मास फ्रेम ऑफ ए, इन द मास फ्रेम ऑफ ए. ठीक है. सारे रेस्ट मास ले लेता हूँ मैं. इन द रेस्ट मास ऑफ ए, ये सारे रेस्ट मास है. तो ये हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ये. ठीक है. बहुत आसान है. दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा पी ए न्यू स्क्वायर प्लस पी बी न्यू स्क्वायर माइनस 2 पी ए न्यू पी बी न्यू. ओके. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो पी ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा. पी बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना. बचा आपका 2 पी ए न्यू पी बी न्यू. ठीक है. नाउ पी ए और पी बी क्या है, पी ए और पी बी, हाँ पी ए और पी बी का प्रोडक्ट कितना होगा, ये तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे.
ये तीनों टर्म्स, बचेगा नॉन ज़ीरो ये टर्म, तो ये आपका हो गया ई ए अपॉन सी इंटू ई बी अपॉन सी, है ना? ये समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है ये यहाँ से? इन दोनों क्वांटिटी से समझ आ रहा है? यू मल्टीप्लाई द कॉम्पोनेंट्स यस सर। एंड देन ऐड देम। तो जो पहला नेगेटिव आएगा ना? हाँ सॉरी, नेगेटिव आएगा इसमें। तो जो टाइम कंपोनेंट है वो सर्वाइव करेगा विद द नेगेटिव साइन, और बाकी जो कंपोनेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो 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 है, यहाँ जीरो है जीरो है जीरो है, तो बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगी। तो जीरो हो जाएंगी तो बचेगा सिर्फ यही, ठीक है? तो इसको लिख देते प्रॉपरली। सो दिस इज ना माइनस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक और मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू ई ए एंड बी है। नाउ व्हाट इज ई ए? व्हाट इज ई ए? एम ए सी स्क्वायर। एम ए सी स्क्वायर। mc square, yes. Why? Because ma is the rest mass and ea is the rest mass energy. जो हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पेरेंट पार्टिकल। तो इस रेफरेंस में ए इज़ द रेस्ट एनर्जी एंड एम इज़ द रेस्ट मास, सो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। एंड यहाँ पे ई बी और सी के में नहीं होगा, क्योंकि एम बी एम सी रेस्ट मास है, जबकि ई बी ई सी रिलेटिविस्टिक मास है। तो यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू एम ए सी स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है? ई ए, तो यहाँ लिखते साइड में ई ए इज इक्वल टू एम ए सी स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आएगा एम ए सी स्क्वायर ई बी अपॉन सी स्क्वायर। तो आपका यहाँ हो गया सी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर हो गया कैंसिल, एंड this is equal to minus ma eb, okay, minus ma eb. So let us substitute this back again here and then see what we get. Or minus mc square is equal to minus ma square c square minus mb square c square, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, प्लस पहले तो यहाँ पे आएगा ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ई ए ई बी अपॉन सी स्क्वायर, जिसकी जगह पे आएगा प्लस एम ए ई बी। ओके, नाउ व्हाट, नहीं, टू का टर्म भी है एक, यहाँ पे टू का टर्म है, टू है ना, यहाँ पे टू है। ओके, सो नाउ आई कैन से इज़ 2ma eb is equal to ma square c square plus mb square c square minus mc square c square, and 2ma को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ma, और the relativistic energy of one of the dot particle is equal to ma square plus mb square minus mc square c square divided by 2ma. So what I have done is, by knowing the rest mass energies of A, B and C, I have calculated the relativistic energy of one of the daughter nuclei in this interaction. Can you see it? By knowing the rest mass energies, this is the rest mass energy of particle A, rest mass energy of particle B, rest mass energy of particle C, this is the rest mass energy of particle A. Usse I have calculated the relativistic energy of the particle B after this decay process. And the relativistic energy is not necessarily EB is equal to MB C square, because MB is the rest mass, jabki EB is not the rest mass, it is a relativistic mass, because the particle could be moving. And